Good morning, students. We are studying the chapter the surface and the interior of the earth. So students, in the previous video we have studied about the internal part of the earth. If you remember this video, you have studied about this. I have given you example of the layers of the cake also, right? And then lastly we have studied about the different rocks. We have studied about the types of rocks. They are igneous, sedimentary and metamorphic rocks. So students, today we will study about those rocks only, but in detail. So let's begin with the igneous rocks. The word igneous means coming out of fire. So basically, what is the meaning of igneous? That means something that is coming from out of the fire. So can you imagine that what comes out of the fire? If you remember that volcanoes, from that lava comes out from the cracks and joints, that is a thing that is coming out of the fire. So the igneous rocks are formed due to intensive heat and pressure, where molten material called magma come out and solidifies over the earth's surface as lava. So same thing I have told you how these rocks are formed. जब क्या होता है बहुत ज़्यादा हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है रॉक्स पे, ठीक है, उसके बाद फ्रॉम इनसाइड द अर्थ मैग्मा कम्स आउट. जब वो हॉट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हॉट है, मॉल्टन है, वी कॉल इट मैग्मा. जब वो अर्थ की सरफेस से बाहर आ रहा है, वी आर कॉलिंग इट लावा. फाइन. The cooling and solidification of magma take place inside the earth, forming intrusive igneous rocks, for example granite. So जो मैग्मा है वो अर्थ की सरफेस के कई बार अंदर ही क्या होता है, अर्थ की सरफेस के अंदर ही ठंडा हो जाता है. देखो, जितना ज़्यादा टेम्परेचर कोर में होगा, यहाँ कोर में जितना टेम्परेचर होगा उतना यहाँ तो नहीं होगा ना क्रस्ट में, राइट, चाहे बाहर या अंदर. सो देयर इज़ अ डिफरेंस. जब यहाँ से ये जो मैग्मा है यहाँ तक पहुँच रहा है तो टेम्परेचर चेंज के कारण क्या हो रहा है, यहाँ से वो सॉलिडिफाई हो रहा है, सॉलिड बन रहा है, ठंडा हो रहा है. एंड इट फॉर्म्स इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स मीन्स inside the surface of the earth. The rocks that are formed by magma, they are known as intrusive igneous rocks. Intrusive igneous rocks का example है granite. If it cools over the earth's surface, it forms extrusive igneous rocks, for example basalt. So there is a difference. If it is coming on the surface of the earth and if it cools down on the surface of the earth, then it is known as extrusive igneous rocks, and the example is basalt. Fine, I will tell you. Suppose this is the surface of the earth and from here that magma is coming, right, that magma is coming, and here under the surface of the earth it is being cooled down and solidified. It will be known as intrusive igneous rocks. The example is granite. But if this magma that comes out of the surface of earth, here, this is the surface, here it is cooled down and here it is solidified, it will be known as extrusive igneous rocks. Example is basalt. Here the example is granite. Here the example is basalt. So students, then the size of the mineral crystal present in a rock depend on the rate of cooling. In general, slow cooling inside the earth result in large size crystals. सो जो रॉक्स हैं वो क्रिस्टल्स से मिलके बनी होती है. क्रिस्टल क्या होता है, मीन्स, अब चलो इतना डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट आप सिर्फ इतना याद रखो कि जब कूलिंग इनसाइड द अर्थ होगी लार्ज क्रिस्टल्स बनेंगे,
ठीक है। Igneous rocks are also called primary rocks as they were formed first over the earth's surface. So what is the other name for igneous rocks? You will answer primary rocks, ठीक है, क्योंकि वो सबसे पहले यही रॉक्स फॉर्म होती हैं या हुई हैं अर्थ की सरफेस पे। Igneous rocks are very important. Igneous rocks are of two types. They are extrusive and intrusive. Extrusive when magma is cooled down on the surface of the earth, and intrusive when magma is cooled down under the earth, under the surface of the earth. And the other name for igneous rocks is primary rocks. Since their formation, the igneous rocks are subjected to weathering and denudation over the years by the agents of gradation. अब देखो igneous rocks बन गई, एंड वी ऑल नो दैट इन रॉक्स से क्या होता है, रॉक्स जब बन जाती हैं तो वेदरिंग की प्रोसेस होती है, ग्रेडेशन शुरू हो जाती है, राइट। द कंटिन्यूअस एक्शन ऑफ दीज एजेंट्स ऑन रॉक्स ब्रेक देम इनटू स्मॉल पीसेस दैट आर कैरिड बाय रिवर्स। अब देखो ग्रेडेशन होगी, छोटे छोटे पीसेस में रॉक्स गिर जाती हैं, राइट, पानी उनको बहा के अपने साथ ले जाता है। दे आर डिपॉजिटेड ऑन द रिवर बेड्स और सी बेड्स, तो वो पानी अपने साथ बहा के ले गया। अब आप देखो फॉर एग्जाम्पल आपने एक बकेट ली, फाइन, आपके पास एक बकेट है, ये तो एग्जाम्पल, इसमें आपने पानी लिया और उसमें मिट्टी, ठीक है, सॉइल, छोटे छोटे पार्टिकल्स आपने उसमें मिक्स कर दिए, ठीक है, वो अपने साथ ले जा रहा है बहाकर। फिर जब वो पानी रुक जाएगा आप थोड़ी देर बाद देखोगे सारी की सारी जो सॉइल है या कोई भी पार्टिकल है वो कहाँ जमा हो जाएंगे, यहाँ पे नीचे बॉटम पे आ जाएंगे। लाइकवाइज जब पानी उनको अपने साथ बहा के ले जाता है तब तो वो पानी के साथ चले जाते हैं, बट आफ्टरवर्ड्स दे सेट डाउन ऑन द सी बेड और रिवर बेड। सी बेड और रिवर बेड क्या होता है, कहीं बेड नहीं लगे हुए हैं सी या रिवर में, रिवर बेड मीन्स रिवर का जो बॉटम है, दैट इज़ रिवर बेड, या फिर सी बेड मीन्स सी का जो बॉटम है, ठीक है, तो वो वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। These deposits are called sediments which form layers one above the other. अब देखो पहले एक लेयर बन गई यहाँ पे, इनको डिपॉजिट्स को क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स। एक बार आ गए, फिर पानी अपने साथ दोबारा ले आया, दोबारा एक और लेयर बन गई। सो ऐसे ऐसे करके लेयर्स बनती जाती हैं। ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द अबव लेयर्स एंड द प्रेजेंस ऑफ सीमेंटिंग पार्टिकल्स दे आर हार्डन टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। अब देखो एक साथ रखे गए, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता गया तो वो क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, दैट इज़ नोन एज सेडिमेंट्री रॉक्स। दिस टाइप ऑफ रॉक्स आर लेयर्ड एंड देयरफॉर आर कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। देखो दो नाम है, इग्नियस का दूसरा नाम क्या है, प्राइमरी रॉक, सेडिमेंट्री का दूसरा नाम क्या है, स्ट्रेटिफाइड रॉक। Sandstone, limestone, clay, shale, chalk are some examples of sedimentary rock. ये examples आपको याद होने चाहिए। Then sometimes the remains of animals and plants get buried and trapped under the layers and over a period of time get converted into coal, oil and natural gas. अब देखो मान लो ये एक लेयर बन गई यहाँ पे, उसके बाद कोई डेड एनिमल्स या डेड प्लांट्स के रिमेन्स यहाँ पे पड़े रह गए, उसके बाद उसके ऊपर एक और लेयर बन गई, तो वो जो बीच में सब कुछ वो फंस गया, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, बट इट टेक्स मैनी ईयर्स, ठीक है, दैट इज़ वाई दे आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। द फॉसिल फ्यूल्स हैव अ ग्रेट इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड एज दे आर द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉसिल फ्यूल। आपको पता है सारी गाड़ियाँ सब कुछ उनसे ही चलता है, ठीक है। किचन में जो गैस है वो कौन सी गैस है, नेचुरल गैस, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अप टू हेयर ओनली वी विल स्टडी टुडे, क्योंकि आपका ये बहुत ज़्यादा वास्ट है थोड़ा सा टॉपिक, और आपको ये समझना भी बहुत अच्छी तरह है। अभी आपने घर पे बिल्कुल रिवाइज करना है इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, इनकी फॉर्मेशन आपको क्लियरली बिल्कुल पता होनी चाहिए विदाउट एनी कन्फ्यूजन। Thank you students, have a nice day.